السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. سابقہ دروس میں ہم اسم کو وسعت کے اعتبار سے نکرہ اور معرفہ، اور پھر جنس کے اعتبار سے مذکر اور مؤنث سمجھ چکے ہیں کہ یہ ان اقسام میں بڑھتا ہے، ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم اسی اسم کو ایک اور ٹائپ کے حساب سے پڑھیں گے، جو ہے حالت۔ تو پہلی چیز ہم نے یہ سمجھنی ہوگی کہ عربی میں حالت کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ ہی اس حالت کے اعتبار سے اسم کو کلاسیفائی کریں گے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا، اسم کو میں نے جب جنس کے اعتبار سے ڈیوائیڈ کیا تھا تو پہلے تھوڑی بہت ہم نے بات کی تھی جنس پر۔ اس طرح یہاں پر بھی حالت پہ پہلی تھوڑی سی بات ہوگی، اور اس کے بعد اسی حساب سے اسم کی تقسیم ہوگی۔ لیکن یاد رکھے، جو ہم نے جنس اور وسعت پڑھا، تو ہم میں سے اکثر کو، چونکہ باقی زبانیں ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، تو ہم کو یہ تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ جنس یا جنڈر ہم کہتے کس چیز کو ہے۔ لیکن یہاں پر عربی میں ایک ایسے چیز کو، ایسے ٹاپک کو ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ، جو باقی زبانوں میں ہمارے لیے اتنا زیادہ کام نہیں آتا، یا تو ہم اس کو پڑھتے بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ہے حالت کا کنسپٹ۔ اب پہلے سمجھ لے حالت کیا ہے۔ حالت کسی کلمے کی یہ ہے کہ جب آپ کسی کلمے کو ایک جملے میں استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر اس کلمے کی حیثیت کیا ہے، اس کا ویلیو کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، یا اس کا سٹیٹس کیا ہے، یہ سمجھنا۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم کہیں گے حامد نے خالد کو مارا۔ یہ سمپلسٹ ایگزامپل ہے۔ اب اس میں دو اسم ہم نے لائے، حامد اور خالد۔ اگرچہ یہ دونوں نام ہیں لیکن فرق ہے ان میں۔ سمجھانے کے لیے ہم دونوں ناموں کو کوئی ایک ہی نام رکھتے ہیں۔ ہم کہیں گے حامد نے حامد کو مارا۔ تو کیا دونوں حامد، یہ جو کلمے دو ہم نے استعمال کیے، کیا ان کی ویلیو اس جملے میں سیم ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک کام کرنے والا ہے اور دوسرا وہ ہے جس پر یہ کام ہو رہا ہے، یہ فرق ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی ایسا ہوگا جس کے ذریعے سے کام ہو جائے گا، کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، کوئی ایسا ہوتا ہے اسم جس کے ذریعے سے ہم بات کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ الگ الگ آپ کے پاس ایک کلمے کی حیثیت، اس کا ویلیو ایک جملے میں کیا ہو سکتا ہے، یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اس چیز کو آپ حالت کا نام دیتے ہیں۔ یہ حالت ہر کسی زبان میں اصل میں موجود ہے۔ جیسے میں ابھی تک اردو کی ہی مثالیں دے رہا تھا، وہاں پر بھی یہ موجود ہے۔ وہاں پر بھی پہلا حامد اور دوسرا حامد، ان میں فرق ہے۔ ایک فاعل ہے، دوسرا مفعول ہے۔ اردو میں بھی ہم اس کو فاعل مفعول کہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ ہے، کیا یہ فردر کسی کام آتا ہے آپ کے؟ تو جواب ہے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے نزدیک اردو میں جب آپ اس جملے کو بولتے ہیں، آپ کہتے ہیں حامد نے حامد کو مارا۔ دونوں جگہ آپ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے حامد۔ ایک جگہ آپ حامد، کسی جگہ حامدہ، یا کچھ مطلب، اب ضروری نہیں ہے عربی اسلوب میں، کسی اور اسلوب میں حامد، حامد، حامد یا کچھ اور نہیں بولتے، بلکہ کام کرنے والا بھی حامد ہے، لفظی چینج کوئی نہیں ہے، اور جس پر یہ کام ہو رہا ہے وہ بھی حامد ہے۔ اگر آپ اس جملے کو عربی میں ترجمہ اس کا کریں گے، آپ دیکھیں گے اس کا ترجمہ ہوگا بارابا۔ بارابا ہوتا ہے مارنا یا مارا اس نے۔ بارابا حامدون حامدن، حامدون حامدن۔ اب جو یہ آپ اس تلفظ میں
या जो हम नोटेशन इसको रख रहे हैं, लास्ट पे किसी को पेश रख रहे हैं और किसी को लास्ट में जबर रख रहे हैं, मुनव्वन, तनवीन वाला। ठीक, हामिदुन कभी कहते हैं, कभी हामिदन कहते हैं। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि किस मकसद के तहत हम कहेंगे। ये मकसद ये होगा कि जो हामिद काम कर रहा है उसके लिए अलग नोटेशन होगी, जिस पर काम हो रहा है उसके लिए अलग नोटेशन होगी। ठीक है, तो ये आपका अलग से एक वाइड टॉपिक बन गया अरबी में, हालत, और फिर उस हालत की बुनियाद पर नोटेशन देना। ठीक है, इसकी तरफ हम पहले आते हैं, फिर हम वापस इसी टॉपिक पे आएंगे, याद रखिएगा। अभी हम सिर्फ हालत वर्ड को पढ़ रहे हैं, अभी हमने इसम को क्लासफाई नहीं किया हालत के एतबार से। ठीक, तो हम वापस आते हैं हालत पे। हालात अरबी में टोटल 4 हैं। अब मैंने हालत पहले ही कह दिया आपको क्या है वो। एक हालत हालत रफा, दूसरी हालत नस्ब, तीसरी हालत जर, और चौथी हालत जज्म। रफा, नस्ब, जर और जज्म, ये हालात है। एक कलमा उसकी क्या वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पर बाकी जुबानों में तो नहीं, यहाँ पर हमने उन वैल्यूज, हाँ, इसकी हालत या इसकी जो वैल्यू पोजीशन एक जुमले में है उसका हमने अब नाम भी रख दिया। ठीक, तो पहला है हालत रफा, फिर नस्ब, फिर जर और फिर जज्म। तो एक नोटेशन हल्की सी मैं बनाता हूं ताकि कुछ और बात मैं समझा सकूं, जो यहाँ नीचे मैंने लिखी भी है। अ, ये जो है, ये तीन, ये तीन हमारे इसम में पाए जाते हैं। इसम हालत रफा में भी हो सकता है, हालत नस्ब में भी और हालत जर में भी। लेकिन अगर हम फ़िल की बात करें तो वो ये इन तीन में पाया जा सकता है, रफा, नस्ब और जज्म। ठीक, फ़िल में जर नहीं होती और इसम में जज्म नहीं होती। ठीक है, हर किसी में तीन तीन है, और ये रफा और नस्ब दोनों में पाई जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा भी है इन इसम एंड फेल, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर ओनली इन इसम और यहाँ पर ओनली इन फेल। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब ये जो हालात है इनके बारे में आप मालूमात आहिस्ता आहिस्ता जमा करते जाएंगे, आपके जहन में उतरता जाएगा होती क्या है ये। ठीक, अभी इन शॉर्ट कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ। पहली चीज़, जब एक इसम आप देखेंगे कि वो खुद काम कर रहा है, काम करने वाली हालत, मिसाल हामिद ने खालिद को मारा। अब इसमें दो इसम आ गए ना, हामिद और खालिद। हामिद काम कर रहा है और खालिद पर काम हो रहा है। हम कहेंगे हामिद हालत रफा में है, उसकी पोजीशन, उसकी वैल्यू क्या है एक जुमले में, वो हालत रफा में है, यानी ये काम जो है वो ही कर रहा है। ठीक, और फिर हालत नस्ब, जब एक इसम पर काम हो, ऐसी हालत जिसमें एक इसम पर काम हो रहा हो। हामिद ने खालिद को मारा, तो खालिद इस जुमले में हालत नस्ब में है, हो गए दो। और फिर जिसके जरिए से काम हो, जिसके जरिए से काम हो, या इन शॉर्ट आप कह सकते हैं जिसके सामने हर्फ लगे। और कौन सा, हर्फ जर। हर्फ जर ऐसे इसम, ऐसे हर्फ होते हैं जो एक इसम को हालत जर में लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला वो सारा आएगा, जर क्या है, हालत जर क्या है, फिर जर इन शॉर्ट आप अभी कह सकते हैं जेर को। ठीक, हालत रफा, हालत नस्ब और हालत जर। मैंने कहा अभी क्योंकि हमने सिर्फ इसम पढ़ना है तो हम सिर्फ ये तीन अभी पढ़ रहे हैं। और रही बात जज्म की, इंशाअल्लाह ताला अभी नहीं पढ़ेंगे, जब फ़ेल का टॉपिक आएगा तो वहां पर इस जज्म को हम पढ़ लेंगे। अच्छा, ये तो मैंने वही कहा जो बाकी जुबानों में भी है, अगरचे वहां पर नाम हम ऐसे नहीं देते हैं, वहां पर कहते हैं फाइली हालत, हाँ, मफऊल वाली हालत, ऐसे कुछ लफ्ज इस्तेमाल किए किए जाते हैं, क्योंकि उसका फर्दर कोई जो है उसका काम नहीं है कोई। ठीक, लेकिन यहाँ पर है। अब मसला ये है, हमारे अरबी
की जो बात है, बाकी जुबानों से कहाँ इसकी डिफरेंस होती है? अगर हालात बाकी जुबानों में भी पाई जाती है, अरबी में भी, मैंने कहा एक डिफरेंस है, वो है अलग अलग हालतों में आप एक इसम को अलग अलग स्ट्रक्चर देते हो। कभी आप हामिदुन कहते हो, कभी हामिदन कहते हो, और कभी हामिदिन कहते हो। ठीक, इन तीनों का जो है वैल्यू एक जुमले में अलग अलग होगा, और जो इन स्ट्रक्चर की डिफरेंस से आपको मालूमात मिलेंगी वो भी अलग होंगी। तो कैसे आप इस हालत को अलग अलग करते हो, या अलग अलग हालात को आप दिखाते हो, वो दिखाते हो आप नोटेशन से, अलामात से। और उसी अलामात, उन्हीं अलामात को हम नाम देते हैं एअराब का। एअराब, इसको याद रखना है। एअराब क्या है? एअराब है नोटेशंस। अच्छा, ये होती कहाँ पर है ये नोटेशंस? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम नोटेशंस या अलामात और एराब में क्या फर्क करेंगे फिर? अलामत हम कहीं पर भी रखने की कोशिश कर सकते हैं, बीच में, आगे, पीछे वगैरह। लेकिन एराब ऐसी अलामत होती है जो एक इसम या फ़ेल के आखिर पर जाहिर हो। ठीक, हामिदुन, हामिदन और हामिदिन, आप इसमें चार लेटर्स देखते हैं, हा, अलिफ, मीम और दाल। हम न तो हा की बात कर रहे हैं, न तो अलिफ की, न तो मीम की, बल्कि सिर्फ लास्ट लेटर की, वो है दाल। उस पर कभी पेश आ रहा है, कभी जबर आ रही है, और कभी जेर। किस बुनियाद पर? क्योंकि उनकी हालतें अलग अलग होंगी। दिखा कैसे रहे हैं? इसी इन्हीं अलामात से, जिनको आपने इन शॉर्ट ग्रामेटिकली अब कह दिया एअराब। ठीक है। अच्छा, ये जो एअराब है, नॉर्मल एअराब ये होता है। नॉर्मल, जरूरी नहीं है हमेशा यही हो। बेसिकली या आमतौर पर अभी के लिए हम जो देख रहे हैं, हालत रफा में जब एक इसम होता है उस पर नॉर्मली पेश होता है, या दो पेश हम कह सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है हर हमेशा ऐसा ही हो। हमने कहा रफा एक हालत है, उसकी अलामत होती है, या एराब होता है उसका। और बेसिक एराब है हालत रफा में पेश, हालत नस्ब में जबर, फतहा, और हालत जर में कसरा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके तजवीद, या जो आप तजवीद में चीज़ें पढ़ते हैं, वहाँ पर बहुत सारे टीचर जो है चीज़ों को मिंगल कर देते हैं। मैंने इसका नाम जो है, ये रफ़ा है। रफ़ा एक हालत है, उस कंडीशन का नाम है। और यहाँ पर ये क्या है? इसको आप अरबी में बम्मा, बम्मा का नाम देते हैं। बम्मा, इसको आप फतहा का नाम देते हैं, फतहा। और इसको आप कसरा, कसरा का नाम देते हैं। अब जो ये बम्मा है, जिसको आप पेश भी कहते हैं, वो अलग चीज है, और रफा अलग चीज है। रफा एक हालत है, और दम्मा एक, हाँ, एराब है, अलामत है। रफा और दम्मा एक चीज नहीं है, इस चीज को आप समझ लें। और जज्म की भी आप अभी अलामत देख ले, वो क्या है? सुकून। जज्म की अलामत क्या है? सुकून। वो तभी आएगा इंशाल्लाह जब फ़ेल हम तफसील से पढ़ेंगे। ये रहा आपका हालत के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग। अब ये जो हालत हमने समझ ली कि अरबी में कैसी कैसी होती है, या एक इसम में कितनी हो सकती है, अब इसके एतबार से हमको आना है और एक इसम को क्लासिफाई करने की कोशिश हमको करनी है। ठीक, इसम इस हालत के एतबार से क्लासिफाई होता है दो टाइप्स में। एक को हम कहते हैं मबनी, और एक को मुअरब। मबनी किस इसम को कहा जाएगा? मबनी मा ला यतगय्यर। अच्छा, अब इसम के लिए आप इतना याद रखिए, जब तक भी हम आगे चलेंगे, तीन हालात होती है, रफा, नस्ब और जर। रफा, नस्ब और जर। अच्छा, जो इन तीनों हालात में एराबी चेंज को ही ना दिखाए, या जो चेंज ना हो, उसको हम कहते हैं ये मबनी होता है। इन शॉर्ट, वो मबनी है माला यतगय्यर, जो चेंज ना हो।
मिसाल जैसे मैंने अभी बेसिक मिसाल दी थी, हामिदुन, हामिदन, हामिदिन। आपको ये भी तो पता है जैसे हामिद अरबी में इसम है, उसी तरह हाजा भी अरबी में एक इसम है। लेकिन आप देखते हैं हाजा वर्ड, ना तो ये हाजा, हाजी, हाजू ऐसा कुछ चेंज नहीं होता। ठीक, या इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आती है, जैसा ये है वैसा ही होगा। अच्छा, इस तरह ज़मीर हमने पढ़ी थी बेसिक अभी कुछ, जैसे हुआ, ही के माना में जो हमने पढ़ा, ये हुआ हर हमेशा हुआ ही रहेगा, ना तो ये हुवु बनेगा और ना तो हुवी। हर हमेशा हुआ, जहां पर भी इस्तेमाल होगा हुआ, इस पर लास्ट पर बाय डिफॉल्ट ये जबर ही रहेगी। ठीक, ऐसे इसमों को, क्योंकि ज़मीर भी अरबी में इसम है, इसमें इशारा भी अरबी में इसम है, ऐसे इसमों को हम कहते हैं कि वो क्या है, मबनी। ये तो शॉर्ट में हो गया। इस तरह इसमें इसमें मौसूल भी आता है। अच्छा, ज़मायर जितनी भी है सारी की सारी, अब वमाइर कुल्लुहा मबनिया, ज़मायर सारी की सारी मबनी है, इसको याद रखना है। अच्छा, इसमें इशारा वो भी मबनी है विद टू एक्सेप्शंस, इंशाल्लाह उसको पढ़ा जाएगा। अभी के लिए इतना याद रख ले कि अस्माए इशारा सारे के सारे मबनी है। अच्छा, उसके बाद आपका आता है इसके उल्टा, यानी मबनी जो ना हो तो वो क्या होंगे, मुअर्रब, यानी चेंज जो होते हो। ठीक। अच्छा, जो जिनके बारे में अब ये कह रहे हैं हम कि जो चेंज होते हो वो कितने हैं और वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में ये देख लें। पहला, या अभी जैसे मैंने मिसाल दी थी पहले उसी पर गौर करें, हामिदुन, हामिदन, हामिदिन, ये एक एग्जांपल है मुअर्रब की। अब उसमें फर्दर टाइप्स आती है मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। ये दो टाइप्स आती है एक मुअर्रब की। हालांकि ये मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ बेजाती ही एक टाइप है एराब ज़ाहिरा की, लेकिन अभी हम वहाँ नहीं जा रहे। यहाँ पर इक्तिफा करके एराब मुक़द्दरा को छोड़ करके सिर्फ इसी पर बात कर रहे हैं। जो मैंने बीच में कहा, जिसको समझ नहीं आया वो उसको छोड़ सकता है। तो शॉर्ट में मुअर्रब की दो टाइप्स है, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ में क्या डिफरेंसेस है, उनको हम अच्छे से समझेंगे। पहली, कि मुनसरिफ वर्ड जो भी होगा वो तनवीन को कबूल करता है, तनवीन को। चलिए मैं यहीं से आपको कहता हूँ, दो दो मिसालें हम लेते हैं। अभी मैंने कहा था हामिद, हामिद हो गया एक। यहां से मैं एक मिसाल ले रहा हूं, मक्का। आप समझते हैं कि हामिद भी एक इसम है और मक्का भी एक इसम है। ठीक, लेकिन अब मैं यहीं से आपको कुछ और डिटेल जो है प्रोवाइड कर रहा हूं कि हामिद जो है ये एक मुनसरिफ इसम है और मक्का जो है ये एक गैर मुनसरिफ इसम है। अब इसका माना क्या होगा, आपने फिर करना क्या है, ये डिटेल सुनने के बाद कि हामिद मुनसरिफ है और मक्का गैर मुनसरिफ है, उस डिटेल को आप समझ लें। पहली चीज कि मुनसरिफ इसम वो होते हैं जिन पर तनवीन आ सकती है, तनवीन आ सकती है। तो बाय डिफॉल्ट आप क्या बोलेंगे, हामिदुन। मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट अरबी में हर किसी इसम पर दो पेश लगते ही है। अगर आपको पता चला कि नहीं लगाने हैं तब आप रुक जाएंगे। ठीक। अच्छा, पहली चीज आपने ये समझ ली। फिर गैर मुनसरिफ में क्या है, पहली बात तनवीन के बारे में, कि इस पर बाय डिफॉल्ट तनवीन आती ही नहीं, तनवीन आती नहीं। तो होगा क्या, आपको जब मक्का को बोलना होगा तो आप क्या कहेंगे, मक्का तो, मक्का तुन नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि आपने पता है गैर मुनसरिफ पर तनवीन आती नहीं है। जब मैंने यहीं से कह दिया मक्का गैर मुनसरिफ है तो आपने करना क्या है, फिर एक ही पेश लगाना है। हो गया एक। अच्छा, फिर बनेगा क्या, हामिदुन का हालत रफा में बनेगा हामिदुन, हालत नस्ब में बनेगा हामिदन। हाँ, दो जबर आएंगी, यहाँ पर दो पेश आए थे। हालत जर में हामिदिन, ये तो नॉर्मल है। पहले तनवीन आई यानी हामिदुन आपने बोला, और फिर तीन चेंज रफा नस्ब और जर में हामिदुन
حامدن اور حامدن، یعنی جو میں پہلے مثال دے ہی رہا تھا حامد کی، وہ آلریڈی منصرف ٹائپ کا ایک اسم تھا. اب اس کے جو برعکس ہے غیر منصرف. اب آپ وہاں دیکھیے حالت رفع میں ہوگا کیا وہاں؟ مکہ تو نہیں بلکہ مکہ تو، کیونکہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں تنوین آتی نہیں. اچھا پھر حالت نصب میں مکہ تا ہوگی دوسری چینج. ٹھیک ہے، کیوں؟ تنوین آتی نہیں تو ایک ہی زبر بھی آئے گی نا، جب ایک پیش آیا تو ایک ہی زبر. اب مسئلہ ہے دوسری چینج کا. دوسری چینج کا وہ ہے جب حالت جر ہوتی ہے. حالت جر، حالت جر میں یہاں پر کسرہ کے بدلے فتحہ ہی آتی ہے، زیر کے بدلے بھی زبر ہی آتی ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو اچھے سے ذہن نشین کر لے. تو اگر میں ان شارٹ آپ سے پوچھوں غیر منصرف، ہم نے کہا مکہ، ٹھیک، اس کو پھر عربی میں آپ کیسے کہیں گے؟ مکہ تو. اچھا تین حالتیں کیا بنے گی اس کی؟ مکہ تو، مکہ تا، مکہ تا. حامد ایک منصرف اسم ہے تو آپ اس کی تین حالتیں کیا بنائیں گے؟ حامدن، حامدن اور حامدن. اگر یہ سارا آپ کو سمجھ آ گیا تو یہ مبنی اور معرب اس کی بیسکس آپ کو کلیئر ہو چکی ہیں. ٹھیک، سوائے اگر ہم ایک اور مثال دے دیں جو ہمارے پاس اکثر چیز آتی ہے، لفظ یا اسم محمد، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور پھر اولو العزم من الرسل بعد محمد، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم. ٹھیک ہے، اب میں کہہ دوں کہ جو محمد لفظ ہے، اسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک، اب میں ایز اے اسم اس کی بات کر رہا ہوں، یہ ایک منصرف ہے، اسم ہے. اور ابراہیم اسم جو ہے یہ ایک غیر منصرف اسم ہے. ٹھیک ہے، تو کیا سننے والا مجھے تینوں حالتیں اس کی بتا سکتا ہے؟ ہاں، محمد، محمدن، محمدن. اور ابراہیم، 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 ابراہیم. یہ تین حالتیں محمد کی بھی اور ابراہیم کی بھی. اس لیے آپ جب عربی عبارات پڑھتے ہیں یا دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں سیدھے محمد رسول اللہ، تجوید کے قاعدے کے بغیر ہم پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہی، ہو گیا دون وہاں پر. اور پھر اشہد ان محمدن عبدہ ورسول، محمدن. اللہم صلی علی محمدن، تو محمدن بھی آیا، محمدن بھی آیا اور محمدن بھی. اب اگر ابراہیم کی بات کرے، ٹھیک، تو وما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. ابراہیم من نہیں آیا، قرآن نے استعمال نہیں کیا. اچھا، اس طرح جہاں پر بھی آپ اس کو نصب میں لائیں گے آپ کہیں گے ابراہیم. اور درود ابراہیمی میں آپ تو پڑھتے ہی ہے کما صلیت علی کی وجہ سے محمدن آیا تھا، علی محمدن. اب یہاں آئے گا علی ابراہیم. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں ابراہیم لفظ جو ہے غیر منصرف ہے، اس میں آئیں گی تین حالتیں، ابراہیم، ابراہیم اور ابراہیم. اب چھوٹا سا ایک ٹاپک رہ جاتا ہے ہمارا جو ہم کو سمجھنا ہی پڑے گا، وہ ہے کہ چلیے ٹھیک ہے، ابھی ہم نے حالت کے اعتبار سے ایک قسم کی اب تین قسمیں بیان کر دی ہے ان شارٹ. ایک تو مبنی، پھر منصرف اور غیر منصرف، جو بذاتی ہی منصرف اور غیر منصرف معرب کی ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے، یہ تین ٹائپس آپ کے سامنے آ گئی. جب بھی آپ کوئی اسم دیکھیں گے آپ ان تین میں سے کہیں گے کہ وہ کوئی ایک ٹائپ ہی ہوگی. تو اب ہم پہچان کیسے کریں گے کہ کون سا اسم منصرف ہے، کون سا غیر منصرف ہے اور کون سا مبنی ہے؟ تو پہلی بات یہ کہ مبنی اسم جو میں نے یہاں چیزیں لسٹ کی ہے، انلسٹ کی ہے، ضمائر، اسماء اشارہ، اسم موصول،
अस्माए इस्तिफाम, जो इंशाल्लाह अगर यहाँ लिखे भी, सवाल के लिए जो इसम इस्तेमाल होते हैं वो, ये सारे जो है एक छोटी सी एक लिस्ट है जो मबनी है। और मबनी बस हम हमारे पास कुछ ऐसे इसम है जो हम गिन भी सकते हैं, यानी बहुत कम है, शॉर्ट है, ठीक है, काउंटेबल है। लेकिन अब अगर असल हम बात करें और बात आती है मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की, उसमें रूल याद रखना है कि बाय डिफॉल्ट हर कोई इसम मुनसरिफ ही है। बाय डिफॉल्ट हर कोई इसम मुनसरिफ ही है। अच्छा, मैंने तो यहीं से आपको कहा था ना मोहम्मद और इब्राहिम के बारे में, मोहम्मद मुनसरिफ, इब्राहिम गैर मुनसरिफ, ठीक है। अब आपके सामने कोई लफ्ज आया, मिसाल के तौर पर आपके सामने आया लफ्ज फैसल, फैसल, ठीक है। अब आप इसको बाय डिफॉल्ट क्या ट्रीट करेंगे? तो आपने याद रखना है मुनसरिफ ट्रीट करना है, जब तक कि आपके पास कोई रीजन ना हो कि ये मबनी है। और मबनी तो मैंने कुछ चीजें बोली। अच्छा, फिर रीजन क्या हो सकते हैं कि एक इसम गैर मुनसरिफ होगा, उसको तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं। तो उनके बारे में एक सिंपल सा रूल याद रख ले कि हमारे पास अरबी में एक इसम के उलमा ने, या किसी भी इसम के इसमों के 9 औसाफ बयान किए हैं, 9 एट्रीब्यूट्स। उन 9 एट्रीब्यूट्स में से किसी भी इसम में अगर 2 एट्रीब्यूट्स, हाँ ये अभी बेसिक रूल मैं इसके बारे में कह रहा हूँ, उन 9 एट्रीब्यूट्स में से अगर किसी भी इसम में 2 एट्रीब्यूट्स जमा हो जाए तो हम कह देते हैं कि ये इसम गैर मुनसरिफ है। वरना बाय डिफॉल्ट तो हर कोई इसम मुनसरिफ ही है। अब मैं इस अपनी बात की थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखूंगा, मैंने क्या कहा, ठीक है। मिसाल के तौर पर पहले उन एट्रीब्यूट्स में से कुछ एट्रीब्यूट्स आपके सामने रखता हूं जो एक इसम के हो सकते हैं। चलिए हम उनको इधर इधर लिखते हैं। पहला, अलम, एक इसम का अलम होना। ये इल्म नहीं लिखा है मैंने, अलम। और अलम आपने पढ़ा मारिफा की पहली किस्म, यानी प्रॉपर नाउन। कोई इसम प्रॉपर नाउन अगर होगा, ये एक एट्रीब्यूट है। दूसरा एट्रीब्यूट उजमा, अभी मैं उसको शॉर्ट में अजमी लिखता हूं। किसी इसम का अजमी होना, अजमी माना गैर अरबी, यानी अरबिक नाम ना हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके सामने अगर मैं नाम रखूं इदवर्द, इदवर्द यानी एडवर्ड, उसको आप कहेंगे इदवर्द। तो इदवर्द अरबिक नाम नहीं है, ठीक बाय, इसकी इसके रूट्स जो है वो अरबिक नहीं है, वो किसी और जुबान के है। अलम होना, अजमी होना हो गए दो। तीसरा मुअन्नस होना, मुअन्नस होना। उन 9 में से मैंने आपको अभी सिर्फ 3 बयान किए हैं, 3 एट्रीब्यूट्स। इस तरह और भी है, लिस्ट आगे टू बी कंटिन्यूड। अब मसला है, इन 3 में से अगर आप किसी भी इसम में ये पाते हैं कि उसमें 2 एट्रीब्यूट्स एक साथ आ गए, ये 3 है ना, अगर किसी में एक एट्रीब्यूट होगा तो जरूर वो क्या है, वो मुनसरिफ ही है। लेकिन 3 में से 2 किसी में आ गए, जमा हो गए, तो उनको हम कहेंगे कि ये गैर मुनसरिफ है। मिसाल सिंपलेस्ट में दे सकता हूं अभी, मेरे पास है वर्ड एक, लंदन। लंदन, लंदन मीन्स ये जगह का नाम है, लंदन। अब मुझे लंदन नून कहना है कि लंदन, लंदन नून मैं तब कहूंगा जब मेरे जहन में होगा कि ये मुनसरिफ है, और लंदन नु मैं तब कहूंगा जब मेरे जहन में होगा ये गैर मुनसरिफ है। अब मुझे पहचान करनी है मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ है, कैसे करूं? तो उसके लिए मैं आता हूं इन चीजों की तरफ। अच्छा, क्या ये आलम है? आलम मीन्स प्रॉपर, हाँ ये तो है, हो गया एक चीज, एक एट्रीब्यूट इसमें जमा हो गया। क्या ये अजमी है, गैर अरबी? हाँ, इसमें 2 चीजें जमा हो गई इन 3 में से। जब 2 चीजें जमा हो गई
तो हम कहेंगे कि ये इस्म क्या है, गैर मुंसरिफ, इसलिए मैं इसको कहूंगा लंदनो। देखिए सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन थी जो मैं दे सकता था, ठीक है। इस तरह कोई और वर्ड हमने लिया था मक्का, मक्का उसकी मैंने मिसाल दी थी, चलिए उसी को हम एग्जामिन करते हैं। मक्का, एक मिनट, उसको इधर मैं लिखता हूँ ताकि ये तीनों चीजें आपके सामने ही रहे। अच्छा मक्का, क्या ये आलम है, प्रॉपर है, हाँ हो गया एक। क्या ये अजमी लफ्ज है मक्का, नहीं। अच्छा क्या ये मुअन्नस है, हाँ। तो दो चीजें इसमें जमा होगी तो आप इसलिए इसको कहेंगे ये गैर मुंसरिफ है, इसलिए आप कहेंगे मक्का तो। ठीक, एक और मिसाल हम लेते हैं। हमारे पास है वर्ड एक नाफिजतुन, नाफिजतुन, नाफिजतुन मीन्स खिड़की। अच्छा इसको देख लेते हैं, क्या ये प्रॉपर है नाफिजतुन, नहीं ये तो नकिरा है। क्या ये अजमी है, गैर अरबी नाम है, नहीं। नाफिजतुन अरबी में विंडो को कहते हैं, ठीक। क्या ये मुअन्नस है, हाँ मुअन्नस है। कितनी चीजें जमा हो गई, सिर्फ एक। तो एक की बुनियाद पर हम इसको गैर मुंसरिफ नहीं कहेंगे, ये मुंसरिफ ही है, ठीक है। तो इसी तरह ये मैंने बेसिक कह दिया। आप चीज़ों को देख सकते हैं, अलग अलग देख इसको कर सकते हैं कि कौन सा इसमें से मुंसरिफ है और कौन सा गैर मुंसरिफ। उसकी और डिटेलिंग आ रही है, जो अभी आपने पढ़ा वो एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने कोई चीज़ें आपके सामने रखी। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में हम देखेंगे और फिर क्लास को वहीं से कंटिन्यू करेंगे।